यू आर वेलकम इन माई क्लास। आपका एक बार फिर से मेरी इस क्लास में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन नंबर 11। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 11 एंड द नेम ऑफ दिस लेसन इज द सन एंड द विंड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 11 द सन एंड द विंड, और ये बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही मजेदार लेसन है, पढ़ के मजा आएगा। तो हमेशा की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस लेसन, देन आफ्टर वी विल नोट डाउन all the difficult words of this lesson, and in the last we will go for the Hindi meaning of this lesson. इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो रीड करेंगे, फिर इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको नोट करेंगे, फिर अंत में हमेशा की तरह पूरे लेसन को पढ़ेंगे और इसकी हिंदी मीनिंग को समझेंगे। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो आप, जो पहली बार देख रहा हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरी टीचिंग अच्छी लगे, मजेदार लगे, तो लाइक करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं लेसन नंबर 11। अपनी अपनी बुक ओपन करो, हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 11। हम रीडिंग करेंगे और आप लोग ध्यान से अपने बुक में देखोगे। ओके, रेडी? लेसन नंबर 11 द सन एंड द विंड। One day the sun and the wind met on the hilltop. It was a beautiful morning. The sun was shining in the sky. The cool wind was blowing gently. A man was walking down the road. He was wearing a coat. The sun and the wind started talking. Wind, how are you? Sun, I am fine, thank you. How are you? Wind, I am okay. Let's have a bet today. Do you see that man on the road? Let's see who can take off his coat. Sun, I am ready. Let's see who is stronger. The wind blew with all his might. Man, how strong the wind is today. It is blowing my coat away. I must hold it tightly around myself. The wind blew harder and harder, but was unable to remove the man's coat. चलो आगे बढ़े। Wind, dear son, I give up. I cannot get his coat off. Sun, now let me try. I will make him feel hotter and hotter. The sun shone brighter and brighter. Man, wiping his face,
I must take off my coat. I cannot bear the scorching heat of the sun. Sun, dear wind, I have won. I have made him take off his coat. Wind, congratulations, dear. Congratulations, dear. You are indeed stronger than me. Wind represents the outer force, whereas the sun could make the person feel the heat inside. Persuasion is better than force. ये एक बार हमने रीडिंग कर दी पूरी लेसन की, क्लियर हो गया। चलो एक बार हम जल्दी से जल्दी फिर से रीडिंग करते हैं, थोड़ा फास्ट रीडिंग करेंगे और ध्यान से देखना। अभी तो मैंने स्लो रीडिंग की, अब थोड़ा फास्ट रीडिंग करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी देखना, जिसको एक बार में क्लियर नहीं हुआ है दोबारा उसको क्लियर हो जाएगा। चलो, द सन एंड द विंड। वन डे द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप। अपने अपने बुक में देखो फिर से। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई। The cool wind was blowing gently. A man was walking down the road. He was wearing a coat. The sun and the wind started talking. Wind, how are you? Sun, I am fine. Thank you. How are you? Wind, I am okay. Let's have a bet today. Do you see that man on the road? Let's see who can take off his coat. Sun, I am ready. Let's see who is stronger. The wind blew with all his might. Man, how strong the wind is today. It is blowing my coat away. I must hold it tightly around myself. The wind blew harder and harder, but was unable to remove the man's coat. Wind, dear son, I give up. I cannot get his coat off. Son, now let me try. I will make him feel hotter and hotter. I will make him feel hotter and hotter. The sun shone brighter and brighter. Man wiping his face, I must take off my coat. I cannot bear the scorching heat of the sun. Sun, dear wind, I have won. I have made him take off his coat. Wind, congratulations, dear. You are indeed stronger than me. Wind represents the outer force, whereas the sun could make the person feel the heat inside. Persuasion is better than force. ओके, तो ये रीडिंग मैंने 2 बार रीडिंग कर ली है। अब जिसको ना समझ में आए फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। और खुद से भी रीडिंग करना, जो नहीं समझ में आएगा उसको अंडरलाइन कर लेना। चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं वो कॉपी पर नोट करेंगे। तो अपनी अपनी कॉपी और पेन को बाहर निकालो और नोट करना शुरू करते हैं। चलो अपनी कॉपी और पेन को बाहर निकालो फटाफट। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेसन 11 द सन एंड द विंड में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको कॉपी पर नोट करेंगे। अपनी पेन और कॉपी को तैयार कर लो। ठीक, हम लोग शुरू करते हैं लेसन 11 डिफिकल्ट वर्ड्स वर्ड मीनिंग। तो जैसे हमेशा हेडिंग डालते हैं ना,
वर्ड, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। इसी तरह हेडिंग डाल दो ऊपर, लेसन 11 द सन एंड द विंड। वर्ड, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। और प्रोनाउंसिएशन आती हो प्रोनाउंसिएशन मत लिखना, सीधे मीनिंग लिख देना। ओके, जरूरी नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन हमेशा लिखा जाए। ये तो कुछ ऐसे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जिसको नोट कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा देर में समझ में आता है या पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए प्रोनाउंसिएशन हेल्पफुल होता है। वो इसको पढ़ के इंग्लिश को अच्छे से बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग लिखना। हेडिंग पढ़ गई सबकी? चलो, पहला वर्ड कौन सा है हमारा? विंड। द सन एंड द विंड लेसन का नाम ही है, तो द सन का मतलब सबको पता है। सन के मतलब हम नहीं बताने वाले हैं। विंड का मतलब बता दो। WIND, विंड। विंड मीन्स हवा। विंड मीन्स हवा। WIND, विंड। विंड मीन्स हवा। नेक्स्ट वर्ड है मेट। MET, मेट। मेट मीन्स मिला, मिले। ये मीट का सेकंड फॉर्म है। ओके, मीट मीन्स मिलना होता है, और मीट का सेकंड फॉर्म क्या है? मेट। मेट मीन्स मिले। ऑन, ON, ऑन माने पर होता है। किसी चीज के पर होता है, ऊपर होता है, उसको ऑन बोलते हैं, वहां पर ऑन का यूज होता है। और जैसे ऑन द टेबल, ऑन द बेंच, ओके, तो वहां पर ऑन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वर्ड है हिल टॉप। HILLTOP, हिल टॉप। हिल टॉप मतलब पहाड़ी की चोटी पर। पहाड़ी की चोटी पर, पहाड़ी पर नहीं, पहाड़ी की चोटी पर, या पहाड़ी पर भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब वही हुआ, पहाड़ी की चोटी पर। हिल टॉप, पहाड़ी पर या पहाड़ी की चोटी पर, दोनों सही है। HILLTOP, हिल टॉप, पहाड़ी की चोटी पर या पहाड़ी पर। ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर। अगला वर्ड शाइन। SHINE, शाइन। शाइन मीन्स चमकना, चमक। चमक या चमकना दोनों बोलते हैं, ठीक। चमक लिख लो। शाइन, SHINE, शाइन। शाइन मीन्स चमक। SKY, स्काई। स्काई मीन्स आकाश, आसमान। जो लिखना चाहो लिख लो, आसमान। आसमान भी हो सकता है, नभ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी लिख लो। आकाश लिख लो, आसमान लिख लो, या नभ लिख लो, कोई भी एक जो अच्छा लगे लिख लो। स्काई मीन्स आसमान या आकाश। नेक्स्ट वर्ड है कूल। COOL, कूल। कूल मीन्स ठंडा। कूल, कूल मीन्स ठंडा। COOL, कूल। कूल मीन्स ठंडा। नेक्स्ट वर्ड ब्लोइंग। BLOWING, ब्लोइंग। ब्लोइंग मतलब बह रही, बह रही, बह रही। अब अगर इसमें वॉज ब्लोइंग होता, अगर वॉज ब्लोइंग है तो बह रही थी हो जाएगा। ओके, और इसकी जगह पर, वॉज की जगह पर इज ब्लोइंग है, इज ब्लोइंग, तो बह रही है हो जाएगा, बह रही है। ओके, तो ये उसी के साथ, दोनों के साथ यूज होता है। वॉज ब्लोइंग मतलब बह रही थी, इज ब्लोइंग मतलब बह रही है। हवा, हवा के सेंस में आता है, हवा का बहना मतलब ब्लो करना, हवा ब्लो करना, हवा ब्लोइंग, हवा बह रही है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जेंटली। GENTLY, जेंटली। जेंटली मतलब धीमे धीमे, मंद, धीमे धीमे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, मंद मंद मतलब जेंटली। हवा मंद मंद बहती है ना, उसी की इंग्लिश है जेंटली।
नेक्स्ट वर्ड पे चलो, वॉक, WALK, वॉक। वॉक मीन्स टहलना, वॉक मीन्स टहलना, WALK, वॉक, वॉक मीन्स टहलना। वेयरिंग, WEARING, वेयरिंग, वेयरिंग मीन्स पहना हुआ, पहना हुआ। स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया। स्टार्ट मीन्स क्या होता है? शुरू करना। स्टार्ट, START, शुरू करना, इसका मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना। और इसका सेकेंड फॉर्म है स्टार्ट, का सेकेंड फॉर्म है स्टार्टेड। ये तो शुरू किया, इसका मतलब हो गया शुरू किया। नेक्स्ट वर्ड टॉक, TALK, टॉक। टॉक मीन्स बात, बात करना, बात करना। टॉक, टॉक मीन्स बात करना, TALK, टॉक, टॉक मीन्स बात करना। अगला वर्ड है HOW, हाउ, HOW, हाउ। हाउ मीन्स कैसे। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करो, थोड़ा लंबा लेसन है, लंबा बहुत लंबा नहीं है लेकिन थोड़े वर्ड्स ज्यादा हैं इसमें, तो जल्दी जल्दी नोट करो। टॉक मीन्स बात करना, हाउ मैंने कैसे। ओके, OKAY, ओके, ओके मतलब ठीक है, OKAY, ओके, ओके मीन्स ठीक है। BET, बेट, बेट मीन्स क्या होता है? शर्त लगाना, शर्त लगाना, शर्त लगाना, शर्त, ठीक है। बेट मीन्स शर्त लगाना। CSEE, सी मीन्स देखना, SEEC मीन्स देखना। नेक्स्ट वर्ड WHO, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन, WHO, हु मीन्स कौन। आगे बढ़े, चलो अगले वर्ड पे आते हैं, टेक ऑफ, TAKEOFF, टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स उतारना, कपड़े उतारने की इंग्लिश होती है टेक ऑफ। READY, रेडी, रेडी मीन्स तैयार, READY, रेडी, रेडी मीन्स तैयार। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रोंगर, STRONGER, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर मीन्स ज्यादा ताकतवर। इस वर्ड होता है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? ताकतवर, ताकतवर। ये हो गया स्ट्रॉन्ग, इसमें ER लग गया तो ये हो गया स्ट्रोंगर, मतलब कॉम्परेटिव डिग्री हो गया स्ट्रोंगर, मतलब ज्यादा ताकतवर। और अगर इसी के साथ हो जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा ताकतवर, ताकतवर, सबसे ज्यादा ताकतवर। ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो, सुन लो इसको, ठीक है। नोट करने की जरूरत नहीं है, ताकि जिससे क्या हो, कभी लाइफ में आए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग में ताकतवर, स्ट्रॉन्गर में उससे ज्यादा ताकतवर, और स्ट्रॉन्गेस्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड ब्लू, BLEW, ब्लू मीन्स बही। ये ब्लो का BLO, ब्लो का सेकेंड फॉर्म है ब्लू। ब्लो मीन्स बहना, ब्लो मीन्स बहना, और उसका सेकेंड फॉर्म है ब्लू, ब्लू मीन्स बही, हवा बही। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड माइट, अगला वर्ड है माइट, MIGHT, माइट। माइट मीन्स शक्ति, ताकत, MIGHT, माइट, माइट मीन्स ताकत या शक्ति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रॉन्ग, STRONG, अभी पीछे हमने बताया।
स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मतलब मजबूत या ताकतवर। ठीक, ताकतवर, शक्तिशाली। ठीक, अगला वर्ड है अवे, AWAY, अवे। अवे मीन्स दूर, अवे मीन्स दूर, AWAY, अवे, अवे मीन्स दूर। आगे चलो अब, HOLD, होल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना, HOLD, होल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना। टाइटली, TIGHTLY, टाइटली, टाइटली मीन्स जोर से। इसीलिए बहुत स्लो पढ़ाते हैं हम, ताकि अच्छे से कॉपी पर नोट कर सको। ठीक है, चाहे तो जल्दी जल्दी पढ़ा खत्म कर दें, फटाफट हो जाए, लेकिन उससे क्या होगा, समझ में नहीं आएगा और छूट भी जाएगा। हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि नोट कर सको। चलो, टाइटली, TIGHTLY, टाइटली मैंने जोर से। आगे, अराउंड, AROUND, अराउंड, अराउंड मीन्स चारों ओर, AROUND, अराउंड मीन्स चारों ओर। माई सेल्फ, MYSELF, MY माई, SELF में सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं, स्वयं, अपने आप को जब बोलते हैं तो माई सेल्फ बोलते हैं, स्वयं, खुद। हार्डर, HARDER, हार्डर, हार्ड मीन्स ज्यादा तेजी से। अब ये हार्डर भी क्या है ना, हार्ड होता है, हार्ड, HAR, हार्ड, फिर हार्डर, और फिर क्या होता है, हार्डेस्ट, HARDEST, हार्ड मीन्स तेजी से, फिर ये हार्डर में उससे ज्यादा तेजी से, हार्डेस्ट में सबसे ज्यादा तेजी से। ठीक, हार्डर में ज्यादा तेजी से। अनेबल, अनेबल मीन्स असमर्थ, UNABLE, UNABLE, अनेबल, अनेबल माने असमर्थ। रिमूव, REMOVE, रिमूव, रिमूव मीन्स उतारना या हटाना, रिमूव मीन्स उतारना या हटाना। आगे चलो, गिव अप, GIVE, गिव, UP, अब गिव अप मीन्स छोड़ देना, गिव अप मीन्स छोड़ देना, GIVE, गिव, UP, अप मीन्स गिव अप मीन्स छोड़ देना। नेक्स्ट, मी, ME, मी, मी मीन्स क्या होता है, मुझे, मी मीन्स मुझे। नेक्स्ट, फील, FEEL, FEEL, फील, फील मीन्स महसूस करना, महसूस करना। हॉट, HOT, हॉट, हॉट मीन्स गरम, हॉट मीन्स गरम। HOTTER, हॉटर, हॉटर मीन्स ज्यादा गरम। अब हॉट हो गया, हॉटर हो गया, अब इसके बाद आ जाता है हॉटेस्ट, हॉटेस्ट माने सबसे ज्यादा गर्म, हॉटेस्ट मीन्स क्या हो गया, सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा गर्म। हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट। हॉट मीन्स गर्म, हॉटर मीन्स उससे ज्यादा गर्म, हॉटेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा गर्म। क्लियर। अगला वर्ड, वाइप, WIPE, वाइप, वाइप मीन्स पोंछना, इसी से वाइपर बना है, वाइप से ही वाइपर बना है। ठीक है, WIPE, वाइप, वाइप मीन्स पोंछना। फेस, FACE, फेस, फेस मीन्स चेहरा,
FACE फेस, फेस मीन्स चेहरा। बियर BEAR बियर, बियर मीन्स सहन करना। BEAR बियर मीन्स सहन करना। स्कॉर्चिंग SCORCHING, स्कॉर्चिंग मीन्स अधिक गर्म। सबसे अधिक गर्मी जब होती है तो उसको स्कॉर्चिंग हीट बोलते हैं। स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मीन्स बहुत ज्यादा गर्म। SCORCHING, स्कॉर्चिंग मीन्स अधिक गर्म। हीट HEAT, हीट मीन्स गर्मी। हीट मीन्स गर्मी। HEAT, हीट मीन्स गर्मी। WON, वन मतलब जीत गया। वन मतलब जीत गया। WON, वन मतलब जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, 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 कॉन्ग्रेचुलेशन मीन्स बधाई। बधाई कह दो या मुबारक कह दो। मुबारक, जब हम लोग किसी को मुबारकबाद देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशन। कई बार बोलोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। थोड़ा बड़ा वर्ड है ना, बोलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक दो बार, तीन बार, चार बार बोलोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, अगले वर्ड पे चलते हैं। डियर DEAR, डियर, डियर मीन्स प्रिय। DEAR, डियर, डियर मीन्स प्रिय। इंडीड INDEED, INDEED, इंडीड मीन्स वास्तव में, वास्तव में। रिप्रेजेंट REPRESENT, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मीन्स प्रतिनिधि करना, प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व, निधित्व करना। इसको काट दो, प्रतिनिधित्व करना। ठीक, प्रतिनिधित्व करना। रिप्रेजेंट मीन्स प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटर। OUTER, आउटर, आउटर मीन्स बाहरी। चलो, दो वर्ड और बचा हुआ है। OUTER, आउटर, आउटर मीन्स बाहरी। फोर्स FORCE, फोर्स मीन्स ताकत। FORCE, फोर्स, फोर्स मीन्स ताकत, शक्ति। इनसाइड INSIDE, इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर। INSIDE, इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर। ओके, तो ये हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके सारे डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने लिखा दिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी और इसमें डिफिकल्ट वर्ड होगा जो छूटा होगा। मैंने कोशिश किया है जितने भी इसमें, इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको वैसे ही नोट करा दे, जिससे कि क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, लेसन अच्छे समझ में आएगा और वर्ड मीनिंग भी हमारी अच्छी से याद हो जाएगी। ओके, तो इस सारे वर्ड मीनिंग को याद कर लो और इसके बाद हम लोग मिलते हैं कहाँ, आप इस लेसन को आप लोग हिंदी में समझेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से अपनी बुक ओपन करो, हम लोग इस लेसन को रीड करते हैं और उसकी हिंदी मीनिंग को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से अपनी बुक को ओपन करो और ध्यान से मैं इस लेसन की रीडिंग कर रहा हूँ और उसके साथ साथ इसकी हिंदी भी बता रहा हूँ। ध्यान से इसको सुनो, ठीक है, और एक बार ना समझ में आए दोबारा वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा।
और अगर वर्ड मीनिंग याद कर ली है तो इस लेसन को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं हम लोग लेसन 11 द सन एंड द विंड की मीनिंग। तैयार? बुक ओपन करो और ध्यान से देखो, ध्यान से देखना सभी, ठीक? पेन, ये है मेरी पेन, ये आ गई मेरी पेन। ओके, चलो बुक ओपन हो गई। लेसन 11 द सन एंड द विंड। तो सन मतलब क्या है? सबको पता है, सन में सूरज, सूरज और हवा, विंड मीन्स हवा। ये कहानी है सूरज और हवा की, सूरज और हवा की ये पूरी कहानी है। ठीक है, क्या होता है चलो देखते हैं इस लेसन में सूरज और हवा के साथ क्या होता है। वन डे द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप। एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, वन डे एक दिन, द सन सूरज, एंड मीन्स और, द विंड और हवा, मेट मीन्स मिले कहाँ? पहाड़ी पर, पहाड़ी की चोटी पर या पहाड़ी पर एक दिन सूरज और हवा मिले। ठीक है, ये कहानी है, वास्तव में नहीं मिले, लेकिन ये कहानी बताई जा रही है कि ऐसे एक काल्पनिक कहानी है कि एक दिन सूरज और हवा पहाड़ी पर मिले। क्या हुआ फिर? इट वॉज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ब्यूटीफुल मीन्स बहुत सुंदर, मॉर्निंग मीन्स सुबह, बहुत सुंदर सुबह थी। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई। स्काई मीन्स आकाश, शाइनिंग मीन्स चमकना, सन मीन्स सूरज, सूरज आकाश में चमक रहा था, सूरज आकाश में चमक रहा था। द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली, और कूल मीन्स ठंडी, विंड मीन्स हवा, वॉज ब्लोइंग मीन्स बह रही थी, जेंटली मीन्स मंद मंद, धीमे धीमे ठंडी हवा बह रही थी। एक दिन सूरज और हवा पहाड़ी पर मिले, बहुत सुंदर सुबह थी, सूरज जो है चमक रहा था और ठंडी ठंडी हवा मंद मंद बह रही थी। A man was walking down the road. A man, a means एक, man means आदमी, एक आदमी was walking down the road, सड़क पर चल रहा था। एक आदमी सड़क पर जा रहा था या चल रहा था। He was, he was wearing a coat. उसने क्या पहना हुआ था? कोट पहना था। wearing means पहना हुआ था, पहना हुआ। ठीक है, wearing means पहना हुआ, पहना हुआ कोट, वो एक कोट पहना हुआ था। द सन एंड द विंड स्टार्टेड टॉकिंग। सूरज और हवा ने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया? टॉकिंग, बात करना। सूरज और हवा ने बात करना शुरू किया। भाई मिलेंगे तो बात भी तो करेंगे, जैसे हम लोग मिलते हैं दूसरे से तो बात करते हैं ना, वैसे हवा और सूरज भी मिले और बात करना शुरू किया। और क्या बात की देखते हैं। विंड ने कहा, विंड हाउ आर यू। विंड ने कहा हाउ आर यू, कैसे हो तुम या कैसे हैं आप। यू में तुम भी होता है, आप भी होता है, तो आप कैसे हो। सर ने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। हाउ आर यू, आप कैसे हो। सूरज ने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हो? हाउ आर यू, आप कैसे हो। विंड आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। लेट्स हैव अ बेट टुडे। बेट मीन्स शर्त, शर्त लगाना। ठीक है, लेट्स हैव अ बेट टुडे, चलो आज हम शर्त लगाते हैं। किसने कहा? विंड ने। विंड ने क्या कहा? चलो आज हम शर्त लगाते हैं। डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड। क्या आपको, सी मतलब देखना, आपको दिखाई पड़ रहा है दैट मैन वो आदमी, कहा? द रोड, सड़क पर। क्या आपको सड़क पर वो आदमी दिख रहा है? लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट। चलो, सी मतलब देखते हैं, चलो
लेट्स मतलब चलो, देखते हैं, हु मतलब कौन, कैन सकता है, टेक ऑफ उतार, हिज कोट उसके कोट को कौन उतार सकता है। हवा ने कहा चलो देखते हैं उस आदमी के कोट को कौन उतार सकता है। कौन उतारेगा बताओ। चलो आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। सन, आई एम रेडी, सूरज ने क्या कहा, आई एम रेडी, रेडी मीन्स तैयार, मैं तैयार हूं। लेट्स सी हु इज स्ट्रॉन्गर, चलो देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। स्ट्रॉन्गर मीन्स ज्यादा ताकतवर, कौन ज्यादा ताकतवर है, चलो देखते हैं। फिर पहली पहली बारी विंड की थी, विंड ने क्या किया, द विंड ब्लू विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति से बहने लगी। हवा जो है पूरी ताकत से बही, वो पूरी ताकत लगाकर उसने अपनी हवा जो चलने लगी। मैन, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे, तो आदमी ने क्या कहा, आदमी ने अपने आप से कहा, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे, कितनी तेज हवा है आज। हवा, विंड मिस हवा, टुडे मिस आज, स्ट्रॉन्ग मिस तेज, कितनी तेज हवा है आज। और जब तेज हवा चलती है तो हम लोग कपड़ों को क्या करते हैं, उतार देते हैं कि पकड़ पहन लेते हैं, और पहन लेते ना। तो वही आदमी ने कहा हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे, आज हवा कितनी तेज है, इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, ये तो मेरा कोट उतार देगी। अवे मीन्स दूर कर देगी, ये मेरा कोट जो है उड़ा के दूर कर देगी। कपड़े उड़ने लगते हैं ना, हवा तेज चलती है तो हम लोग क्या करते हैं, आई मस्ट होल्ड इट टाइटली, मुझे, होल्ड मीन्स पकड़ना, टाइटली मतलब जोर से, अराउंड माई सेल्फ अपने चारों ओर, इसको जोर से पकड़ लेना चाहिए। कपड़े को जोर से पकड़ लिया, पूरे कोट को जोर से पकड़ लिया, तो उससे उसका कोट उड़ेगा नहीं, उड़ेगा ना, बच जाएगा। ठीक है, वैसे उस आदमी ने किया, कोट को जोर से पकड़ लिया। फिर क्या हुआ, द विंड ब्लू हार्डर एंड हार्डर बट वॉज अनेबल टू रिमूव द मैन्स कोट। हवा ब्लू मतलब बही, हार्डर एंड हार्डर, जोर से और जोर से पूरी ताकत से हवा बही, बट लेकिन वॉज अनेबल असमर्थ हो गई, क्या करने के लिए, रिमूव द मैन्स कोट, उसके कोट को उतारने में असमर्थ हो गई। बहुत जोर से हवा चली लेकिन उसका कोट उतार नहीं सकी, उस आदमी का कोट उतार नहीं सकी। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। विंड, फिर विंड ने कहा, क्या कहा, डियर सन, प्रिय सूरज, आई गिव अप, मैं छोड़ता हूँ, मतलब मैं थक गया, मैं छोड़ता हूँ, मैं थक गया हूँ। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसका कोट उतार नहीं सकता हूँ। कैन नॉट मिल सकता हूँ, कैन नॉट में नहीं उतार सकता हूँ, मैं उसका कोट उतार नहीं सकता हूँ। किसने कहा, हवा ने कहा, प्रिय सूरज, मैं थक गया हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं उसका उस आदमी का कोट नहीं उतार सकता हूँ। सन, फिर सूरज ने कहा, नाउ लेट मी ट्राई, नाउ मीन्स अब, मुझे प्रयास करने दो, ट्राई मीन्स प्रयास करना, कोशिश करना, अब मुझे कोशिश करने दो। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं उसको महसूस कराऊंगा क्या, गर्मी, और गर्मी, मैं उसे अधिक गर्मी महसूस कराऊंगा। फिर क्या होगा, जब गर्मी लगी तो क्या करते हैं हम लोग, कपड़ा और पहन लेते हैं कि उतार देते हैं। तो वही उसके साथ हुआ। चलो, द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर, सूरज जो है चमका, शोन मिस चमका, शाइन का सेकंड फॉर्म है शोन, शाइन मतलब चमकना, शोन मिस चमका, सूरज चमका बहुत तेजी से, और तेजी से, मतलब सूरज बहुत तेजी से चमकने लगा, मतलब बहुत गर्मी हो गई होगी ना उसमें। मैन, वाइपिंग हिज फेस, वाइपिंग मीन्स पोंछते हुए, फेस मीन्स चेहरा, अपना चेहरा, चेहरा क्यों पोंछ रहा था, सीना आ गया। ठीक है, अब चेहरा पोंछते हुए उस आदमी ने क्या कहा, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अपना कोट टेक ऑफ करना चाहिए, मतलब उतार देना चाहिए, मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए। आई कैन नॉट बियर द स्कॉर्चिंग
हीट ऑफ द सन। मैं बियर नहीं कर सकता हूँ, बियर मतलब बर्दाश्त करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ क्या? द स्कॉचिंग हीट, बहुत ज्यादा गर्मी सूरज की, मैं सूरज की बहुत ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपना कोट मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए। आगे सन, सूरज ने कहा डियर विंड, प्रिय हवा, आई हैव फन, मैं जीत गया हूँ। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उसका कोट उतार दिया है। प्रिय हवा, प्यारे हवा, मैं जीत गया हूँ, मैंने उसका कोट उतार दिया है। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उसका कोट उतार दिया है। विंड, हवा ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, प्यारे सूरज, बधाई, आपको बधाई, आपको मुबारक। जब कोई चीज जीत जाता है, दूसरा कोई जीत जाता है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ना, बधाई देते हैं। तो ऐसे ही विंड ने सूरज को कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, आपको बधाई, प्रिय आपको बधाई। यू आर इंडीड स्ट्रोंगर देन मी, इंडीड मीन्स वास्तव में, यू तुम हो, स्ट्रोंगर मीन्स ज्यादा ताकतवर, देन मी मुझसे ज्यादा, आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। इसने कहा बधाई, आपको बधाई, आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। Wind represents the outer force, whereas the sun could make the person feel the heat inside. हवा क्या है? रिप्रेजेंट करती है किसको, प्रतिनिधित्व करती है किसका? आउटर फोर्स, बाहरी शक्ति को प्रदर्शित करती है। हवा बाहरी शक्ति को प्रदर्शित करती है, जबकि वेयर एज मतलब जबकि सूरज जो है कुड मेक द पर्सन फील हीट इनसाइड, सूरज जो है इंसान के अंदर गर्मी को महसूस कराती है। हवा बाहर से ताकत लगाती है, लेकिन सूरज जो है किसी भी पर्सन किसी भी इंसान के अंदर गर्मी पैदा कर सकती है, उसको गर्म महसूस करा सकती है। ये पूरा लेसन था, और इस लेसन का जो मोरल है वो ये है, क्या है? परसुएशन इज बेटर देन फोर्स, मतलब विनती करना ज्यादा बढ़िया है ताकत दिखाने से। ताकत नहीं दिखाना चाहिए, सभी को विनम्र रहना चाहिए। अगर आपके पास शक्ति भी है तो भी आपको शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ओके, तो लेसन कैसा लगा आप सबको? अच्छा लगा? और ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। वीडियो अच्छी लगी, लेसन अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मेरी टीचिंग अच्छी लग रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, नाइस सर, थैंक यू सर, जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट कर देना। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बता देना, उनको भी शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो, हम आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी कर देंगे। क्लास 5 के बाद हम लोग मिलेंगे क्लास 6 में, फिर 7th में, फिर 8th में, और इंग्लिश बहुत अच्छी होती जाएगी धीरे धीरे, अगर ऐसे ही सारे वीडियोस को देखते रहोगे। चलो हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेसन में, लेसन 12 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। ठीक है, बाय बाय।